Introduction. Powder. Powders are the mixture of finely divided drug or chemicals in dry form. They are used for internally and externally. They are available in crystalline or amorphous form. There is a relationship between particle size of powder and dissolution, absorption and therapeutic effect of drug. परिचय. पाउडर. पाउडर सूखे रूप में बारीक विभाजित औषधि या रसायनों का मिश्रण होता है. इनका उपयोग आंतरिक और बाह्य रूप से किया जाता है. ये क्रिस्टलीय या अनाकार रूप में उपलब्ध हैं. पाउडर के कण आकार और दवा के विघटन, अवशोषण और चिकित्सीय प्रभाव के बीच एक संबंध है. Advantages of powders. Powders are more stable than liquid dosage form. The chance of incompatibility are less as compared to liquid dosage form. The onset of action of powdered drug is rapid as compared to other solid dosage form, e.g. tablet, capsules. Due to smaller particle size of powder, it get dissolved easily in body fluids. Larger quantity of powdered drugs can be administered to the patient orally by dissolving or mixing the powder in the suitable liquid. Small children or elderly patient can easily take the powdered drug as such or dispersed in water or any other liquid. Powders are more economical as compared with other dosage form because not required any special machinery or technique. Powders are more easy to carry than the liquid dosage form. चूर्ण के फायदे. तरल खुराक के रूप की तुलना में पाउडर अधिक स्थिर होते हैं. तरल खुराक के रूप की तुलना में असंगति की संभावना कम है. अन्य ठोस खुराक रूपों की तुलना में पाउडर दवा की कार्रवाई की शुरुआत तेजी से होती है. टैबलेट, कैप्सूल. पाउडर के कण आकार छोटे होने के कारण ये शरीर के तरल पदार्थों में आसानी से घुल जाता है. बड़ी मात्रा. पाउडर वाली दवाओं को उपयुक्त तरल में पाउडर को घोलकर या मिलाकर रोगी को मौखिक रूप से दिया जा सकता है. छोटे बच्चे या बुजुर्ग रोगी दवा का चूर्ण ऐसे ही या पानी या किसी अन्य तरल में घोलकर आसानी से ले सकते हैं. अन्य खुराक रूपों की तुलना में पाउडर अधिक किफ़ायती हैं क्योंकि इसके लिए किसी विशेष मशीनरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है. तरल खुराक के रूप की तुलना में पाउडर को ले जाना अधिक आसान होता है. Disadvantages of powders. Drugs having bitter, nauseous and unpleasant taste cannot be dispensed in powdered form. Deliquescent and hygroscopic drugs cannot be dispensed in powder form. Drugs which get affected by atmospheric conditions are not suitable for dispensing in powder forms. The dispensing of powder is a time-consuming. Powder के नुकसान. कड़वे, मिचली और अप्रिय स्वाद वाली दवाओं को पाउडर के रूप में नहीं दिया जा सकता है. डिलीक्सेंट और हिड्रोस्कोपिक दवाओं को पाउडर के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता है. जो औषधियां वायुमंडलीय परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, वे पाउडर के रूप में वितरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं. पाउडर वितरण में समय लगता है. क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स. बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज. Bulk powder for external use. Simple and compound powder for internal use. Powders enclosed in sachets and capsules. Compressed powders, tablets. चूर्ण का वर्गीकरण. आंतरिक उपयोग के लिए थोक पाउडर. बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर. आंतरिक उपयोग के लिए सरल एवं मिश्रित पाउडर. कैचेट और कैप्सूल में बंद पाउडर. संपीड़ित पाउडर, गोलियां. Bulk powder for internal use. When accuracy of dosage form is not required or is not important at that time, powders are dispensed in bulk form. Bulk powder contains several doses of powder. They are supplied in wide-mouthed containers that permits easy removal of a spoonful powder. The non-potent substances which are supplied in bulk are antacid and laxative etc. e.g. rhubarb powder. आंतरिक उपयोग के लिए थोक पाउडर. जब खुराक के रूप की सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है या महत्वपूर्ण नहीं होती है तो उस समय पाउडर थोक रूप में वितरित किए जाते हैं.
थोक पाउडर में पाउडर की कई खुराकें होती हैं। इन्हें चौड़े मुंह वाले कंटेनरों में आपूर्ति की जाती है जिससे 1 चम्मच पाउडर आसानी से निकाला जा सकता है। थोक में आपूर्ति किए जाने वाले गैर शक्तिशाली पदार्थ एंटासिड और रेचक आदि हैं, जैसे रूबब पाउडर। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। Bulk powder for external use are non-potent substance. These powders are supplied in cardboard, glass or plastic containers, which are often designed for the specific method of application. The dusting powders are supplied in perforated or sifter top containers. The bulk powders which are commonly used for external applications are follows. Dusting powders, insufflations, snuffs, डेंटिफ्रिसेस। बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर। बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर गैर शक्तिशाली पदार्थ हैं। इन पाउडरों की आपूर्ति कार्डबोर्ड, कांच या प्लास्टिक के कंटेनरों में की जाती है, जिन्हें अक्सर आवेदन की विशिष्ट विधि के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डस्टिंग पाउडर की आपूर्ति छिद्रित या सिफ्टर शीर्ष कंटेनरों में की जाती है। बाहरी अनुप्रयोगों के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले थोक पाउडर इस प्रकार हैं। डस्टिंग पाउडर, सूजन, सूंघना, दंत चिकित्सक। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। डस्टिंग पाउडर्स, these are used for external application on the skin and generally applied in very fine state to avoid local irritation. Therefore, dusting powder should be passed through sieve number 80 or 120 to enhance their effectiveness. Dusting powders are two types, I. Medical E. Surgical. Medical and surgical dusting powders are free from pathogenic microorganism. Medical and surgical dusting powders before use must be sterilized by dry heat method at 160 degrees Celsius for 2 hours. Surgical dusting powders are used in body cavities and also used on burn case and umbilical cord of infants. Whereas, medical dusting powders are generally used on superficial skin condition. बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर, डस्टिंग पाउडर। इनका उपयोग त्वचा पर बाहरी अनुप्रयोग के लिए किया जाता है और स्थानीय जलन से बचने के लिए आमतौर पर बहुत महीन अवस्था में लगाया जाता है। इसलिए डस्टिंग पाउडर को छलनी नम से गुजारना चाहिए। उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए 80 या 120। डस्टिंग पाउडर 2 प्रकार के होते हैं, आई। चिकित्सा द्वितीय, शल्य चिकित्सा। मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर रोगजनक सूक्ष्मजीवों से मुक्त हैं। उपयोग से पहले मेडिकल और सर्जिकल डस्टिंग पाउडर को 2 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर सूखी गर्मी विधि द्वारा कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। सर्जिकल डस्टिंग पाउडर का उपयोग शरीर के छिद्रों में किया जाता है और जले हुए मामलों और शिशुओं की गर्भनाल पर भी किया जाता है। जबकि मेडिकल डस्टिंग पाउडर का उपयोग आमतौर पर सतही त्वचा की स्थिति पर किया जाता है। Bulk powder for external use cunt. In the preparation of dusting powder, the talc or kaolin, starch are used commonly because these are chemically inert. But, such ingredients are readily contaminated with pathogenic bacteria, so, these must be sterilized before their use by dry heat sterilization method. The dusting powders are dispensed in sifter or aerosol containers. Dusting powders are generally non-toxic, but inhalation of its fine powdered ingredients by infants may lead to pulmonary inflammation. So proper care should be taken while handling. Use: antiseptic, astringent, absorbent, antiperspirant. बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर सामग्री। डस्टिंग पाउडर तैयार करने में आमतौर पर टैल्कम पाउडर या काओलिन, स्टार्च का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। लेकिन, ऐसे तत्व आसानी से रोगजनक बैक्टीरिया से दूषित हो जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग करने से पहले सूखी गर्मी नसबंदी विधि द्वारा इन्हें कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। डस्टिंग पाउडर को सिफ्टर या एरोसोल कंटेनर में वितरित किया जाता है। डस्टिंग पाउडर आमतौर पर गैर विषैले होते हैं, लेकिन शिशुओं द्वारा इसके बारीक पाउडर वाले तत्वों को सांस के साथ लेने से फुफ्फुसीय सूजन हो सकती है।
इसलिए संभालते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। उपयोग: एंटीसेप्टिक, कसला, शोषक, एंटीपर्स्पिरेंट। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, e.g. of dusting powder, Rx, purified talc, sterilized 50 gm, starch powder 25 gm, zinc oxide powder 20 gm, salicylic acid powder 5 gm. Procedure: weigh accurately all the powders and mix them ascending order of their weight. Pass the mixed powder through sieve number 85 or 120. After sieving, mix them lightly and transfer into sifter top container and protect it from atmospheric contamination. Direction: applied on the affected part 2 or 3 times a day. Use: zinc oxide used for astringent and antiseptic and salicylic acid used for antiseptic and fungicidal. बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर जैसे डस्टिंग पाउडर आरएक्स, शुद्ध किया हुआ टेल्कम, निष्फल 50 ग्राम स्टार्च पाउडर 25 ग्राम जिंक ऑक्साइड पाउडर 20 ग्राम सैलिसिलिक एसिड पाउडर 5 ग्राम। प्रक्रिया: सभी चूर्णों को सही तौलें और उन्हें उनके वजन के अनुसार आरोही क्रम में मिलाएं। मिश्रित पाउडर को छलनी संख्या 85 या 120 से गुजारें। छानने के बाद उन्हें हल्के से मिलाएं और छलनी के शीर्ष कंटेनर में स्थानांतरित करें और इसे वायुमंडलीय प्रदूषण से बचाएं। निर्देश: प्रभावित हिस्से पर दिन में 2 या 3 बार लगाएं। उपयोग: कसैले और एंटीसेप्टिक के लिए जिंक ऑक्साइड का उपयोग और एंटीसेप्टिक और कवकनाशी के लिए सैलिसिलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, इंसफ्लेशंस। These are medicated dusting powder. They are introduced into body cavities such as nose, throat, ears and vagina with the help of an apparatus, insufflator. Nowadays, the insufflations are available in the form of pressure aerosols and these aerosols used for potent drugs. Insufflations are used to produce a local effect in the treatment of ear, nose, throat infection with antibiotics or to produce a systemic effect from a drug that is destroyed in the gut. बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर, इंसुफ्लेशन। ये औषधीय डस्टिंग पाउडर हैं। इन्हें एक उपकरण, इंसुफ्लेटर, की मदद से शरीर की गुहाओं जैसे नाक, गले, कान और योनि में डाला जाता है। आजकल इंसुफ्लेशन प्रेशर एरोसोल के रूप में उपलब्ध हैं और इन एरोसोल का उपयोग शक्तिशाली दवाओं के लिए किया जाता है। इंसुफ्लेशन का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के साथ कान, नाक, गले के संक्रमण के उपचार में स्थानीय प्रभाव उत्पन्न करने या आंत में नष्ट हो जाने वाली दवा से प्रणालीगत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, स्नफ्स। These are finely divided solid dosage form of medicament, which are inhaled into nostrils for antiseptic, bronchodilator and decongestion action. Snuffs are dispensed in flat metal boxes or glass container with hinged lid. बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर, नस्वार। ये औषधि के सूक्ष्म रूप से विभाजित ठोस खुराक के रूप हैं, जिन्हें एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडायलेटर और डिकंजेशन क्रिया के लिए नाक में डाला जाता है। नस को सपाट धातु के बक्सों या ढक्कन वाले कांच के कंटेनर में वितरित किया जाता है। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, डेंटिफ्रिसेस। These are applied on tooth surface with help of brush. In that contains suitable detergent or soap, some abrasive substance and suitable flavoring agents are involved. Abrasive agents such as calcium sulfate, calcium carbonate, and sodium chloride are used in fine powder. E.g., Rx, hard soap powder 50 gm, calcium carbonate powder 935 gm, saccharin sodium 2 gm, peppermint oil 4 ml, cinnamon oil 2 ml, मेथी सैलिसिलेट 8 ml। बाहरी उपयोग के लिए थोक पाउडर, डेंटिफ्राइसिस। इन्हें ब्रश की मदद से दांत की सतह पर लगाया जाता है। इसमें उपयुक्त डिटर्जेंट या साबुन, कुछ अपघर्षक पदार्थ और उपयुक्त स्वाद देने वाले एजेंट शामिल होते हैं। महीन पाउडर में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड जैसे अपघर्षक एजेंटों का उपयोग किया जाता है, जैसे RX कठोर साबुन पाउडर 50 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर 935 ग्राम, सैकेरिन सोडियम 2 ग्राम, पुदीना तेल 4 ली, दालचीनी का तेल 2 ली, मेथी सैलिसिलेट 8 मिली. Simple and compound powders for internal use. In this form of powder, each individual dose is enclosed in paper. The number of ingredient is 1 ie simple powder while more than 1 ie compound powder. The minimum quantity of each powder should not be less than 100 milligrams for it can be handled conveniently by patient and can be weighed accurately. आंतरिक उपयोग के लिए सरल एवं मिश्रित पाउडर. पाउडर के इस रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत खुराक कागज में संलग्न होती है. सामग्री की संख्या 1 है यानी साधारण पाउडर जबकि 1 से अधिक यानी मिश्रित पाउडर है. प्रत्येक पाउडर की न्यूनतम मात्रा 100 मिलीग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे रोगी द्वारा आसानी से संभाला जा सकता है और सटीक रूप से तौला जा सकता है. Simple and compound powders for internal use. Simple powder. In simple powder contains only one ingredient either in crystalline form or amorphous form. If powder present in crystalline form then it is reduced to fine powder, weighed the powder and divided into number of doses and wrapped as individual dose. E.g. dispensed 6 powders of aspirin. Each powder contains 300 mg of aspirin RX, aspirin 300 mg procedure. Powder the aspirin and weigh the required quantity of aspirin. Weigh 300 mg of aspirin for each powder and wrap each powder in individual powder paper. Direction. 1 powder to be taken after every 8 hours. आंतरिक उपयोग के लिए सरल एवं मिश्रित पाउडर. सरल पाउडर. साधारण पाउडर में केवल एक घटक होता है या तो क्रिस्टलीय रूप में या अनाकार रूप में. यदि पाउडर क्रिस्टलीय रूप में मौजूद है तो इसे बारीक पाउडर में बदल दिया जाता है. पाउडर का वजन किया जाता है और खुराक की संख्या में विभाजित किया जाता है और अलग अलग खुराक के रूप में लपेटा जाता है. जैसे एस्पिरिन के 6 पाउडर वितरित किए गए. प्रत्येक पाउडर में 300 मिलीग्राम एस्पिरिन RX. एस्पिरिन 300 मिलीग्राम होता है. प्रक्रिया. एस्पिरिन को पाउडर करें और आवश्यक मात्रा का वजन करें. एस्पिरिन. प्रत्येक पाउडर के लिए 300 मिलीग्राम एस्पिरिन का वजन करें और प्रत्येक पाउडर को अलग अलग पाउडर पेपर में लपेटें. निर्देश. हर 8 घंटे के बाद एक पाउडर लेना है. Simple and compound powders for internal use. Compound powders. Compound powders contains 2 or more than 2 substances which are mixed together. Then divided into desired number of individual doses. Then dispensed into each powder paper. E.g. dispense 8 powder of APC. Each powder contains 500 mg of APC. RX. Aspirin 300 mg. Paracetamol 150 mg. Caffeine 50 mg. Procedure. Weigh accurately of each powder and mix them as per ascending order of their weight. Weigh 500 mg of the mixed powder for each powder and wrap each dose individual in powder paper. आंतरिक उपयोग के लिए सरल एवं मिश्रित पाउडर. यौगिक चूर्ण. यौगिक चूर्ण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं जो एक साथ मिश्रित होते हैं. फिर व्यक्तिगत खुराक की वांछित संख्या में विभाजित किया गया. फिर प्रत्येक पाउडर पेपर में वितरित किया गया. उदाहरण के लिए A, P, C के 8 पाउडर दें. प्रत्येक पाउडर में 500 मिलीग्राम A, P, C होता है. RX. एस्पिरिन 300 mg. पैरासिटामोल 150 mg. कैफीन 50 mg. प्रक्रिया. प्रत्येक पाउडर का सटीक वजन करें और उन्हें उनके वजन के बढ़ते क्रम के अनुसार मिलाएं. प्रत्येक पाउडर के लिए 500 मिलीग्राम मिश्रित पाउडर का वजन करें और प्रत्येक खुराक को अलग अलग पाउडर पेपर में लपेटें. Powders enclosed in caches and capsules. Caches are solid dosage form of drug and caches are also called as wafer capsules.
These are molded from rice flour. Rice paper prepared from mixture of rice flour with water enclosed in between two hot, polished cylinders. Then water was evaporates and wafers formed. In the caches 0.2 to 1.5 gm nauseous or disagreeable drugs in powder form are enclosed. कैचेट और कैप्सूल में बंद पाउडर. कैचेट्स दवा का ठोस खुराक रूप है और कैचेट्स को वेपर कैप्सूल भी कहा जाता है. इन्हें चावल के आटे से ढाला जाता है. चावल का पेपर दो गर्म, पॉलिश किए हुए सिलेंडरों के बीच में पानी के साथ चावल के आटे के मिश्रण से तैयार किया जाता है. फिर पानी वाष्पित हो गया और वेपर बन गया. कैचेट्स में 0.2 से 1.5 ग्राम में चली या अरुचिकर दवाएं पाउडर के रूप में होती हैं. Powders enclosed in caches and capsules. Caches are quite hard, so, before swallowing they dipped in water for seconds and then placed on the tongue and swallowed with draught of water. After swallowing, the caches gets disintegrate and drug is released. Advantages of caches: made easily. Disintegrate quickly in stomach. Drug can be easily dispensed. Large dose of drug can be swallowed by using caches. कैचेट और कैप्सूल में बंद पाउडर. कैचेट काफ़ी कठोर होते हैं, इसलिए निगलने से पहले उन्हें कुछ सेकंड के लिए पानी में डुबोया जाता है और फिर जीभ पर रखा जाता है और पानी के छींटे के साथ निगल लिया जाता है. निगलने के बाद कैशे विघटित हो जाता है और दवा निकल जाती है. कैचेट के फायदे: आसानी से बन जाता है. पेट में जल्दी विघटित हो जाता है. दवा आसानी से वितरित की जा सकती है. कैचेट्स का उपयोग करके दवा की बड़ी खुराक को निगला जा सकता है.